السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کو علامہ اقبال صاحب کی وہ نظم سناؤں گا جو نظم انہوں نے واعظ کی دینداری پر لکھی ہے۔ آئیے پہلے نظم سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں: عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، کوئی اب تک نہیں سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، وہی سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے، ہم اپنی دردمندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز آذان سے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، کہ جب علامہ اقبال صاحب امت کے واعظوں کی دینداری دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ہمارے واعظوں کی عجیب دینداری ہے، کیوں کہ عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، انہیں تو سارے جہاں سے دشمنی ہے۔ کیا ہمارے دین میں، یعنی دین یہ نہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، دین ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک ہی دین ہے، اور کسی بھی دین میں دنیا سے عداوت کا درس نہیں دیا گیا۔ یہ نبیوں نے اور نبیوں کے ساتھیوں نے، نبیوں کے ماننے والوں نے جو ترقیاں کی ہیں وہ دنیا میں ترقی کی ہیں، دنیا سے محبت کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو علامہ صاحب نے یہ تعجب ظاہر کیا ان کی دینداری پر کہ اللہ، میں جب اپنے واعظوں اور مولویوں، جتنی بھی آپ نصیحت دیکھیں گے، جس کی بھی آپ واعظ سنیں گے، جس کی نصیحت آپ سنیں گے، تو آپ کو کیا درس دیتے ہیں؟ بھائی، دنیا سے دل کو ہٹا لو، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا دوستی کی چیز نہیں ہے، اس سے دشمنی کرو۔ یعنی اب دین جو اترا ہے وہ تو دنیا کے لیے اترا ہے۔ بھائی، بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہے سیاست یعنی بادشاہت، اور تجارت، صنعت اور زراعت، یہ زندگی کے بڑے شعبے ہیں چار، اور ان سے پھر سارے شعبے جو ہیں وہ پھیلتے ہیں۔ اب ہر شعبے میں انسان کس طرح اچھی کارکردگی دکھائے گا، کس طرح ایک فرد اپنے کام سے بہت سارے لوگوں کو مستفید کر سکے گا، اس کے لیے اللہ نے دین کو اتارا اور نبیوں سے عمل کروایا، اور پھر نبیوں کے ماننے والوں نے انہی اصول کو سامنے رکھ کر دنیا پر راج کیا ہے۔ لیکن آج کافی، یعنی کئی صدیوں سے ہمارے جو واعظین ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ان کی طرز عمل یہی ہے کہ بھائی، ہم دنیا کو نہ چڑھے، سیاست کوئی بھی کرے، ہمیں ان سے کیا کام ہے؟ بھائی، تجارت جیسی بھی ہو، صنعت جیسی بھی ہو، زراعت جیسی بھی ہو، معاشرت جیسی بھی ہو، ہم نے تو وہی آگے جانا ہے۔ تو جب آگے، ٹھیک ہے جانا آگے ہے، لیکن کیسے جائیں گے؟ قیامت کے دن آپ سے، یعنی قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے، اور قیامت کے دن جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ دنیا کے بارے میں، دنیا والوں سے پوچھے جائیں گے۔ جو دنیا میں رہا ہی نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، علامہ اقبال صاحب ہمیں درس دیتے ہیں، اور ان جو ہمارے واعظین ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، انہیں یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی، آپ دنیا سے عداوت مت کریں، دشمنی نہ کریں، بلکہ دنیا سے دوستی کریں۔ آج دنیا سے عداوت کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے محبت کی ہے، آج دنیا ان کی مٹھی میں ہے۔ جب دنیا ان کی مٹھی میں ہے، ہم سب کے سب ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ جیسے بھی چاہیں
हमारी जान ले सकते हैं, जैसी भी चाहे हमारी इज्जतें लूट सकते हैं, हमारे माल को कैसे हड़प करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल साहब की जो निगाह है वो ये है कि मुसलमान भी और मुसलमान के वाइज़ीन भी वो दुनिया से मोहब्बत करे, और ऐसी मोहब्बत करे कि भाई हमने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना है। देखिए आज गैरों के जो, अब देख लीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के करीब कोई मुसलमान नहीं जाता, और ऐसे ऐसे इजादात आ रहे हैं नए नए कि इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन जो भी इजाद सामने आता है और फिर जब उस इजाद से दुनिया मुस्तफीद होती है तो हमारे मौलवी मिंबर पर बैठकर कहते हैं कि भाई ये तो कुरान में 1400 साल पहले लिखा गया है, ये तो भाई सैयदना उमर के ज़माने में था, और ये तो फलां के ज़माने में इस तरह हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मेरे भाइयों, अगर कुरान में अगर 1400 साल पहले आपके कुरान में, आपकी किताबों में यही तालीमात थी, तो आप क्यों इस पर अमल नहीं करते? आप क्यों तहकीक से काम नहीं लेते ताकि आप दुनिया के आका बन जाएं और फिर आपके लिए कोई मसला ना हो? आज हम देखें, इंसाफ मांगते हैं, आज हम क्या क्या नहीं मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। कोई अब तक नहीं समझा कि इंसान कहाँ जाता है, आता है कहाँ से। इन वाइज़ों बिचारों को तो ये भी पता नहीं है कि इंसान कहाँ से आता है और कहाँ जाएगा। मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह की तरफ से आया है और जा भी अल्लाह की तरफ है। जब अल्लाह की तरफ जा रहा है तो दुनिया में जितने देर ये रहेगा उसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे। सौम सलात की पूछगछ नहीं होगी मेरे भाई, ये अल्लाह और बंदे के बीच में मामला है। नहीं, जिंदगी के जितने शोबे हैं वो आप की बरकत से कितनी पुररौनक थी, कितनी खूबसूरती आपने बख्शी हैं जिंदगी के शोबों को, लेकिन हमारे वाइज़ीन को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। फिर अल्लामा इकबाल साहब ने खबरदार किया और क्या फरमाया? वही से रात को जुल्मत मिली है, वही से रात को जुल्मत मिली है, चमक तारे ने पाई है जहां से। मेरे भाइयों, जहां से तारे चमक पाते हैं वहीं से रात जुल्मत भी पकड़ती है। ये अंधेरे कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं जहां से रोशनी आती है, जहां से सुबह नमूदार होती है। मेरे भाइयों, सहाबा और नबियों के मानने वाले, उन्होंने जहां पे तरक्की की थी तो उनके बरक्स जब करेंगे हम तो क्या होगा? हम तनज़्ज़ुल के शिकार होंगे। ये जो उम्मत पर जुल्मत की रात है, जो उम्मत गुर्बत में गिरी हुई है, जुल्मत में गिरी हुई है, गुलामी में गिरी हुई है, ये जुल्मत कहाँ से पकड़ी गई है? वहीं से, जहाँ से तारों ने चमक पाई, हमने वहाँ से क्या किया? हमने वहाँ से जुल्मत पकड़ ली। यानी जिस कुरान से और जिस अहादीस से, जिन अहादीस से और जिस नबी की तालीम से सहाबा ने चमक पाई, रौनक पाई, सहाबा ने मैं क्या कह इज्जतें पाई, आज वहीं से हमें जुल्मत मिल रही है, वहीं से हमें जिल्लत मिल रही है, और वहीं से हमें गुलामी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। हम अपनी दर्दमंदी का फसाना सुना करते हैं अपने राज़दां से, और मेरे भाइयों, हमारी जो दर्दमंदी का फसाना है, ये जो अफसाना है, ये जो दास्तान है हमारी दर्दमंदी का, ये हम किससे सुना करते हैं? अपने वाकिफ हालों से। जो हमारे वाकिफ हाल होते हैं उनसे सुना करते हैं। हम अपनी दर्दमंदी का फसाना सुना करते हैं अपने राज़दान से। जो हमारे राज़दान हैं, जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, हम उनसे सुनते हैं और सुना करते हैं। हमें जो जानते हैं कि कौन लोग हैं, ये क्या है, आज हम उनसे पुरुमेद हैं, हम उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान ने उठना होगा, और मुसलमान मर्दों ने नहीं, औरतों ने भी उठना होगा।
बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने, इन्होंने, ये मदारिस हैं हमारी, ये इन्होंने अपने बच्चों को तैयार करना है लड़ने के लिए नहीं और खुदकशियों के लिए नहीं। किसके लिए? उठो मेरी दुनिया को, गरीबों को जगा दो कि उठो। और ये जो जिंदगी के हर शोबे में लोग परेशान हैं, फरेब में मुब्तला हैं, ये बाजारों में क्या हो रहा है, ये अदालतों में क्या हो रहा है, ये ईवानों में क्या हो रहा है, मेरे भाई कितना जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी माओं ने उठना है और अपने बच्चों को तैयार करना है, जैसे सहाबा की माएँ अपने बच्चों को तैयार किया करती थी। बड़ी बारीक हैं वाइस की चालें, लरज़ जाता है आवाज़ें आज़ान से। और अल्लामा साहब ने फिर फरमाया है कि ये वाइस की चालें कितनी बारीक हैं, यानी वाइस की जो चालें हैं वो इतनी बारीक हैं कि वाइस साहब ये आवाज़ें आज़ान से, यानी आज़ान की आवाज़ से लरज़ जाता है कि ये क्या हुआ, कि जब उम्मत में कोई मर्द मोमिन उठता है और वो उम्मत को उठाने के लिए एक अजान देता है, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले ये हैबत किसके ऊपर तारी होती है? वाइज़ों के ऊपर। सबसे पहले हमारे मौलवी उनके दुश्मन होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़म है और मैं कहता हूँ कि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़्यादा ले लूँ। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों, मेरी बातें तो हैं नहीं, ये अल्लामा साहब के ऊपर नुज़ूल है और अल्लाह की तरफ से एक नुज़ूल है। अगर ये नुज़ूल आपको पसंद आई हो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस दीन हक़ के दावत के सिलसिले में आप भी हमारे साथ शामिल हों।